Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing Master or PS in English can seek help. Our today's course is Grammar English 2 and I'm gonna tell you about the very important topic is 7 C's of Communication. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. 7 C's in writing in communication. How often you communicate with people during your day? How clear is your communication? This article shares the 7 C's of communication to ensure you are communicating in the most clear and effective way possible. You write emails, facilitate meetings, participate in conference calls and create reports, devise presentations, debate with your colleagues. The list goes on. This is why the 7 C's of communication provide a checklist for making sure that your making emails, conference calls, reports and presentations are well clear. आप जो emails, facilitate meetings, participate in conference calls और reports, presentations, debate, colleagues के साथ जो कुछ भी करते हैं, क्या आपकी वो सारी presentations, emails correct हैं? 7 C's आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको ये सारी mistakes बताएगा कि आपकी ये emails, presentations are well clear. In this article we look at each element. First of all, clear. Second, concise. Third, concrete. Fourth, correct. Fifth, coherent. Sixth, complete. Seventh, courteous. First is clear. To be clear, try to minimize the number of ideas in each sentence. क्लियर करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी ईमेल्स को ये ट्राई करें कि आपके जो आइडियाज़ हैं हर सेंटेंस में उसके मिनिमाइज नंबर हों. मेक श्योर डैट इट्स इजी फॉर योर राइडर टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग. और इस बात का यकीन रखें कि ये आपके पढ़ने वालों के लिए, राइडर्स के लिए अंडरस्टैंड हो इसके मीनिंग्स. इंफॉर्मेशन एंड एक्शंस रिक्वायर्ड मस्ट बी क्लियर सो द राइडर हैज़ द इंफॉर्मेशन दे नीड टू टेक एक्शन. इंफॉर्मेशन और एक्शन जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्लियर करें अपने राइडर के लिए, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उनके एक्शन के लिए. सेकंड, इन कंसाइज. व्हेन यू आर कंसाइज इन योर कम्युनिकेशन, जब आप कंसाइज चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, यू आर स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ. आप अपने पॉइंट को स्टिक करें और इससे वजाहत करें. योर ऑडियंस डजंट वांट टू रीड इन 6 sentences व्हेन यू कुड कम्युनिकेट योर मैसेज इन 3. आपके ऑडियंस आपकी 6 sentences को नहीं रीड करेगी, हर किस नहीं रीड करेगी जब तक आप वही 6 sentences, 6 फिक्रात आप अगर 3 में लिखते हैं तो वो आपकी ऑडियंस उन 6 sentences को नहीं रीड करेगी बल्कि 3 को करेगी. Third is concrete. When your message is concrete, then your audience has a clear picture of what you are telling them. जब आपका मैसेज concrete होगा तो आपकी ऑडियंस आपको क्लियर पिक्चर जाहिर करेगी, क्लियर पिक्चर शो करेगी जो आप कह रहे होंगे. There are details and why facts. They are laser like focused. Your message is solid. आपका मैसेज solid होना चाहिए. Correct. Fourth is correct. When your communication is correct, it fits your audience. जब आपकी communication दुरुस्त होगी, आपकी ऑडियंस में फिट होगी. And correct communication is also error free communication. और जो correct communication होती है वो error free communication कहलाती है. Coherent. When your communication is coherent, it's logical. जब आपकी communication coherent होगी तो ये logical होगी. All points are connected and relevant to the main topics. तमाम points connect होंगे और आपके main topics के साथ relevant होंगे. And the tone and flow of the text is consistent. और tone और flow text का, मतन का जो flow और उसकी tone होगी वो consistent होगी. Complete. 6 is complete. In the complete message, the audience has everything they need to be informed and if applicable, take action. अगर आपका मैसेज कंप्लीट होगा, ऑडियंस एवरीथिंग नीड टू बी इन्फॉर्म. जो कुछ आपको जो कुछ इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है वो सब कुछ देगी एंड एप्लीकेबल एक्शन भी देगी. कोर्टियस. कोर्टियस कम्युनिकेशन इज फ्रेंडली, ओपन एंड ऑनेस्ट. कोर्टियस कम्युनिकेशन जो होती है वो फ्रेंडली होती है, ओपन एंड ऑनेस्ट होती है. देयर आर नो हिडन इंसल्ट्स और पैसिव एग्रेसिव टोन्स. उसमें कोई हिडन इंसल्ट नहीं होती और कोई पैसिव एग्रेसिव टोन्स नहीं होती. यू कीप योर राइडर व्यू पॉइंट इन माइंड. आप अपने राइडर को अपना व्यू पॉइंट उसके माइंड तक पहुंचा सकते हैं. यू आर एपथेटिक टू देयर नीड्स और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एपथेटिक हो सकते हैं.
ऑल ऑफ अस कम्युनिकेशन एवरी डे, और ये तमाम कम्युनिकेशन रोजमर्रा जिंदगी में, द बेटर वी कम्युनिकेट द मोर क्रेडिबिलिटी वी ऑल हैव विद आवर क्लाइंट और बॉस और कोलीग्स। जब हम बेटर कम्युनिकेशन करेंगे हमारी कम्युनिकेशंस भी ज़्यादा अच्छी होगी अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ और अपने कोलीग्स के साथ। यूज़ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस, और इन 7 C's कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल करते हुए बाय डूइंग दिस यू आर स्टे क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रेट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। और इन तमाम 7 C's कम्युनिकेशंस को सीखते हुए आपकी कम्युनिकेशंस क्लियर होगी, कंसाइज होगी, कॉन्क्रेट होगी, करेक्ट होगी, कोहेरेंट होगी, कंप्लीट एंड कोर्टियस होगी। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।